Everyone, and welcome to another edition of Let's Football Live. I hope you guys are well, staying at home and staying safe. Not too long to go now before the lockdown gets over if you're watching this in India. Thanks for chiming in always in these editions of Let's Football Live, a series that started with Sandesh Jingan, a defender, and then we went to a midfielder in Eric Partlu, then we had a coach, Elko Shatori, then a couple of forwards, Farooq Chaudhry, a man we affectionately call Mr. ISL, Ian Hume, and also all the way from Australia once again, David Williams. So now we're finally going to go a little further back and we're going to go into goal. We're going to have our special guest very shortly on this edition. He's a man who was the first Indian to win the Golden Glove Award in the Hero Indian Super League. He's got more appearances than any other goalkeeper for a single side in the Hero ISL, and he's the most capped player in the history of Mumbai City FC. So plenty to talk about if we're talking about a shot stopper extraordinaire. Mumbai City FC call him our keeper. He's none other than Amrinder Singh. So I'm going to try and get him on and fire away with your questions as well. There have been a lot of early questions that have come in, so I'll try and take as many as possible. Let's find Amrinder Singh first of all the way from Punjab, by the way. Let's see if Amrinder is online. And he is indeed. So we just... He should be with us anytime now. Thanks for all your early bird questions, by the way. I'm sure Amrinder will have his hands full, quite literally trying to answer. पाजी कैसे आप? पाजी एकदम सही, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया. कैसा चल रहा है लॉकडाउन? घर पे क्या क्या मेहनत चल रही है? झाड़ू पोछा बर्तन, what all are you doing? ये तो अभी नौबत नहीं आई पाजी, बाकी सब सही चल रहा है, सब लोग सेफ है. मेरे आसपास के जो भी माहौल है पूरा अभी सेफ है. तो घर पे बस अपना जिम और टीवी. देखो, शादीशुदा ना होने की ये फायदे हैं क्योंकि आपको ये सब नहीं करना पड़ता जो हम जैसे कुछ लोगों को करना पड़ता है. So lucky you. By the way, the hair is looking nice and you're looking nice and sharp as always, Amrinder. So welcome thank to you, Let's Football Live. Now, we have a lineup of things that we need from you today. Apart from also talking about Sandesh Jingan, कि आप उनके इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं और वो आपके इंस्टाग्राम पे क्या करते हैं. लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग्स विल बी टॉकिंग अबाउट योर जर्नी सो फार. मुंबई सिटी एफसी के बारे में जाहिर है बात करेंगे. आपने कुछ बड़े प्लेयर्स के साथ खेला है, जैसे कि फोलैंड, जैसे कि सुनील छेत्री, जैसे कि सोनी नोडे, इवन मुडू सुगु एंड पाओलो मशाडो. उनके बारे में बात करेंगे. आपकी ISL 11 भी मैं जानना चाहता हूँ, एक ऑल टाइम 11, क्योंकि योर जर्नी started with 80K in season 2. लेकिन शुरुआत करते हैं आपके खुद के सफर के साथ. So let's just begin from where we should begin always. Amrinder Singh was a striker before he became a goalkeeper. ये सब कैसे शुरू हुआ, मुझे बताइए पंजाब से. पाजी मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था. मुझे लग रहा है मैं फुटबॉल में जब मुझे इंस्पायर किया था तब मैं ना रात को मैच देख रहा था लिवरपूल का AC मिलान के साथ. तो उसके बाद 2005. ओके. हाँ, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक बन गया था कि हाँ मुझे अभी फुटबॉल खेलना है, कुछ भी हो जाए. जो मैंने वो मैच जब लिवरपूल जीती उसके बाद का माहौल देखा कि फैंस कैसे सब लोग सिंग कर रहे हैं और क्या माहौल था वहां पे. तो उसके बाद मेरे एक दिमाग में आ गया था कि नहीं यार मुझे भी फुटबॉल ही खेलना है. तो उस टाइम से ही मैंने अपने दिमाग में सेट कर लिया था कि मुझे अभी फुटबॉल ही खेलना है. तो 2005 के बाद पाजी मैंने 2006 और 7 में आई थिंक मैंने खालसा स्कूल पाल दिया यहाँ पे हम सब लोग, करणजीत, मैं, गुरविंदर, सब लोग वही स्कूल में स्टडी किया है. वहाँ पे एक अच्छी एकेडमी होती थी, वहाँ पे ही हमने स्टार्ट किया है पूरा. तो पहले मैं अपने गांव में खेलता था, स्ट्राइकर खेलता था. जब मैंने मुझे पता चला कि वो स्कूल में ट्रायल्स है तो मैं ट्रायल्स के लिए गया था. मैं स्ट्राइकर था तो स्ट्राइकर ट्रायल्स दिए. मैंने पता नहीं कैसे एक आधा स्कोर किया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया उस टाइम पे. तो मैं लकी था. तो उसके बाद मेरा मुझे लग रहा है 6 मंथ ऐसे ही स्ट्राइकर की ट्रेनिंग करता रहा. उसके बाद एक मेरा कोच था यादविंदर सिंह. तो उसने मुझे देखा कि तेरी हाइट अच्छी है और तेरे फ्यूचर के लिए ये अच्छा है कि तू स्ट्राइकर छोड़ के गोलकीपर बन जा. और मेरे दिमाग में उस टाइम पे यही एक बात होती थी कि मुझे बाहर नहीं बैठना है, जस्ट कैसे भी करके मुझे कोई भी पोजीशन मिले मुझे खेलना है. तो मैंने उसकी बात सुनी और अपने ग्लव्स डाले. उसने ही लाके दिए थे ऐसे ग्लव्स डाले और मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी उस टाइम पे. इट्स फैंटास्टिक. अभी कुछ दिनों पहले
सॉरी, अभी कुछ दिनों पहले सुनील छेत्री से बात हो रही थी ऑफलाइन, और वो भी अक्सर ये कहते हैं कि अमरिंदर इज वेरी गुड विद हिज फीट। आप शॉट स्टॉपर्स की बात करते हैं, आप बात करते हैं सम ऑफ द बेस्ट सेव्स दैट अमरिंदर, गुरप्रीत, अरिंदम, विशाल, ऑल दीज गाइज मेक, लेकिन एक चीज जो हमेशा अमरिंदर के खेल में स्टैंड आउट करती है, व्हिच इज दैट ही इज वेरी गुड विद हिज फीट। तो बिकॉज यू स्टार्टेड ऑफ एज एन आउटफील्ड प्लेयर या स्ट्राइकर, इज दैट द रीजन व्हाई यू आर सो गुड विद योर फीट? बिकॉज इफ छेत्री इज सेइंग इट, आई एम गोइंग टू बिलीव इट। मुझे लग रहा है कि हाँ, एक रीजन ये हो सकता है कि मैं पहले स्ट्राइकर था, तो उसका मुझे एडवांटेज मिल रहा है कि मैं पैर के साथ थोड़ा अच्छा हूँ, पास कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि हाँ, वो चीज का मुझे एडवांटेज मिल रहा है। Fabulous. लेकिन वहां से तो जर्नी सिर्फ शुरू हुई थी। Once you put on the gloves, you put them on in some fashion, because फिर आप गए पुणे, वहां से फिर ISL का सफर शुरू हुआ अमरिंदर, then you went to ATK, City of Joy, कोलकाता, and you had a great before coming to Mumbai. So how did that whole journey transpire? पुणे से लेके आपका कोलकाता तक का सफर और फिर मुंबई आने तक, आपने मतलब what were the things that really stood out for you in your career? जब मैं भाजी पुणे में गया था, तो मैं पुणे अंडर 19 के ट्रायल्स देने के लिए गया था। वहां पे रंजन सर थे जो अंडर 19 के उनके कोच थे, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया था जब मैं 19 के ट्रायल देने के लिए गया था। तो मैंने 2 साल के साइन किए वहां पे एकेडमी में। तो उन्होंने बोला कि आफ्टर 1 मंथ सबको आना है और इकट्ठे होना है, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। मुझे याद है मैं ट्रेन से गया था और सुबह 10 बजे मैं पुणे में पहुंचा था और हम सब लोग वहां पे आ चुके थे। मैं जाके सो रहा था, ऐसे सेम दिन की बात है, मैं जाके ऐसे ही अपना रेस्ट कर रहा था। और उसी दिन शाम को 3 बजे एक ऑफिशियल आया कि तुझे 10-15 दिन सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग करनी है। वाओ। हाँ, तो मुझे पता नहीं चला कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने अपना बैग उठाया, मैं सीनियर टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चले गया, क्योंकि उस टाइम पे पॉल भाई थे पुणे में। तो पॉल भाई नेशनल टीम के साथ थे, उनके पास एक ही गोलकीपर था, शाहीन लाल। तो मुझे 10-15 दिन चांस मिला उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए। फिर हम लोग गोवा, थोड़े प्री सीजन के लिए पुणे गोवा जाती थी हमेशा। तो हम लोग गोवा गए, वहां पे मुझे एक गेम मिली खेलने के लिए वास्को के साथ। तो उसमें मैंने 1-2 सेव किए उसमें। तो जब हम लोग वापस आए पुणे में, तो उन्होंने मुझे सीधा सीनियर टीम में साइन किया था। राइट। तो उसके बाद फिर पहले साल मुझे आई थिंक 1 या 2 गेम मिले खेलने के लिए। उसके बाद सेकंड सीजन लास्ट में मुझे चांस मिला। ऐसे बीच में अप डाउन होता रहता था कि 10-15 मिनट मिले या थोड़ा टाइम मिला। जब लास्ट के 6 गेम बचे थे, तो फिर मुझे चांस मिला एक गेम में, आई थिंक दिल्ली में था वो गेम। उसके बाद फिर मैंने अपना वो फॉर्म कंटिन्यू रखा और पुणे में अपना एक जो कि हमेशा प्लेइंग 11 में रहूं, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया था अपना। उसके बाद मुझे लग रहा है 2 साल के बाद मुझे नेशनल टीम से कॉल आई, क्योंकि मैं पहले कभी भी जूनियर नेशनल टीम के लिए कभी नहीं खेला था। अंडर 17, 14, 13, 21 कोई भी नहीं खेला था। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम कॉल आई, तो मुझे विम सर ने कॉल किया था। तो मैं ऐसे उनका कॉल उठाया, ऐसे मैं बाइक पे था, शायद जिम से आ रहा था, जब पता नहीं कहाँ से आ रहा था। तो मैंने उनका ऐसे 10-11 बजे के आसपास कॉल आया, मैंने कॉल उठाई, बात की उनसे। मुझे पहले लगा कि कोई मुझे मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट कैंप गोवा में है, तेरा नाम है लिस्ट में, तुझे आना है। तो मैं एकदम शॉक हो गया कि मैं कभी जूनियर टीम के लिए नहीं खेला और मुझे सीधा सीनियर टीम में एक चांस मिल रहा है कैंप के लिए। It's very humble of you, Amrinder. लेकिन by the way, we are getting messages from Chennai fans saying come to CFC, Kerala fans saying come to Kerala, West Coast Brigade are saying you're looking very sharp. और आप hair cut कहाँ करा रहे हो हमें नहीं पता, but I'm hoping somebody's cutting your hair because लॉकडाउन चल रहा है 4था हफ्ता। I don't know how you managed to look that sharp. मेरे साथ में ही है एक मेरा फ्रेंड, वो ही कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी घर पे ही है, तो बाहर जाना तो मुश्किल है। तो मैं उसका एडवांटेज ले रहा हूँ कि करवाना चाहिए अगर आसपास है तो। This is good. I think I'm going to pass this on to my partner who lives with me, and I'm going to ask her to start cutting my hair as well. Anyway, moving on. So that was a great journey to Pune and then getting a call up for the national team. लेकिन ATK फिर आप गए, वहां से ISL की आपकी जर्नी शुरू हुई, and that season was great because ATK की टीम भी बहुत अच्छी थी। उस दिन हम Ian Hume से बात कर रहे थे अपने लाइव पे, और Ian Hume talked about that being the best side possibly in his opinion across all seasons. जिस तरह की अटैकिंग, अग्रेसिव, अट्रैक्टिव फुटबॉल ATK ने खेली, वो थोड़ा सा सीजन के बारे में बताइए ATK, बिफोर वी कम टू मुंबई एंड गेट योर थॉट्स ऑन मुंबई सिटी FC.
मुझे लग रहा है वो साल हमारी मेरा फर्स्ट सीजन था, क्योंकि फर्स्ट सीजन हम लोग खेले नहीं थे आईएसएल में। तो सेकंड सीजन जब मैं एटीके में खेला तो एक तो मैं एक्साइटेड था कि आईएसएल है, इतना बड़ा नाम है, मैं पूरा एक्साइटेड था, अपना हार्ड वर्क कर रहा था। मुझे लग रहा है वो एक बहुत ही अच्छा सीजन गया मेरा। उसमें मैंने हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, कुछ रीजन की वजह से हम लोग नहीं फाइनल में जा सके। और मुझे लग रहा है कि वो सीजन मेरा बेस्ट था और मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी सीजन भी था, क्योंकि मैं उसमें अच्छा करूं। तो मैंने उसमें मुझे लग रहा है 14-15 मैच खेले होंगे, तो अच्छा अच्छा परफॉर्म था, मैं कह सकता हूँ। तो जो वहां पे मैंने देखा कि हवास सर थे, जो टीम था हमारा, बहुत ही हमेशा ही ट्रेनिंग में एकदम शार्प रहता था। उनकी ट्रेनिंग को लेके सब लोग को पता था कि क्या करना है, कैसे करना है। और पूरा टीम उस टाइम पे बहुत फ्रेंडली था, क्योंकि हमारे लिए था, मेरे लिए था कि मेरा फर्स्ट सीजन है। ह्यूम था वहां पे, हेल्डर पोस्टिगा था, तो ये एक बड़े बड़े नाम थे मेरे साथ। तो एक बहुत ही एक एक बड़ा स्टेप था मेरे लिए उनके बीच में अपने आप को परफॉर्म करना। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ मैं जूनियर हूँ उस टाइम पे। तो जितने भी फॉरेनर्स थे सब लोग इतने हेल्पफुल थे। पोस्टिगा था, हमेशा बात करता था कि ह्यूम था, बोरखा था, टीरी था Yeah. उस टाइम पे हमारे साथ। तो सब लोग बहुत ही ऐसे हेल्पफुल थे और मेरे लिए इजी रहा कि मैं उनके साथ जाके परफॉर्म कर सकूं। एंड दैट वाज अ ग्रेट सीजन। और कई बार ऐसा लगता है कि वो टीम कैसे 2015 का सीजन नहीं जीती, हैरानी होती है। बट यू नो दैट वन गेम अगेंस्ट चेन्नई एफसी जो बालेवाड़ी में हुआ, जिसमें 3-0 हारे, उसके बाद रिवर्स करना काफी मुश्किल हो गया था। एनीवे, वील कम टू मुंबई नाउ, बिकॉज सीजन 2016 when you were when you moved to Mumbai City FC, Ranbir Kapoor and Bimal Parikh's team, uh, everybody had a lot of expectations क्योंकि सब देख चुके थे आपको एटीके में। लेकिन जब आप मुंबई सिटी एफसी आए और आपने शुरू में आपने मैचेस नहीं खेले, बट यू केम लेटर ऑन, आई थिंक यू जस्ट प्लेड 6 games, बट यू स्टिल वेंट ऑन टू विन द गोल्डन ग्लव। हाउ कम यू डोंट कॉल दैट सीजन एज योर बेस्ट सीजन एज अ गोलकीपर? क्योंकि उस टाइम पे मुझे लग रहा है हम लोग लेट आए थे, क्योंकि हम एएफसी कप खेल रहे थे बेंगलोर में। तो जब हमारा वो खत्म हुआ तो हम लोग आए। तो वो भी एक ग्रेट सीजन था मेरे लिए, क्योंकि अभी पहले सीजन की बात कर रहे हैं, अभी उसके बारे में दिमाग में आ रहा है। वो भी एक ऐसी मेमोरीज थी उसमें। तो एक मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा सीजन था मेरे लिए। तो हम लोग लास्ट 6 और 7 गेम रहते थे। मुझे याद है मैं फर्स्ट गेम में जब हम लोग आए थे वहां पे, फर्स्ट गेम हमारा पुणे के साथ था मुंबई में। तो या मैं बेंच पे बैठा था। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट अवे गेम खेलना था गोवा के साथ। उसमें मुझे मेरा चांस मिला खेलने के लिए। एक मेरे ऊपर प्रेशर भी था, क्योंकि टीम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है और उस टाइम पे टॉप ऑफ द टेबल थे। तो जब मैं वहां पे उनके साथ ज्वाइन किया तो पहले ही 1-2 दिन में मैं इतना ज्यादा मिक्सअप हो गया था टीम के साथ। गोयन था डिफेंडर, तो आपको पता है डिएगो फोलन था, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। तो उनके साथ इतनी जल्दी मिक्सअप होना एक नॉर्मल बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा हेल्प की कि कभी भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम लोग लेट आए हैं, जहाँ उन लेट आके ऐसे मिक्सअप होना थोड़ा डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है मैं बहुत जल्दी उनके साथ मिक्सअप हो गया। गोयन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी मेरी। और जब या मैंने स्टार्ट किया तो मुझे लग रहा है हाँ 6 गेम मैंने खेले थे, उसमें पांच पांच क्लीन शीट थी। आई थिंक हमने सेमीफाइनल में 3 गोल खाए थे उस टाइम पे। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा सीजन था मेरे लिए। आई नो, इनफैक्ट आई थिंक यू ओनली कंसीडर्ड इन वन गेम। वो जो छठा गेम था जिसमें आपने कंसीड किया, वो दैट टर्न्ड आउट टू बी द सेमीफाइनल, जिसकी वजह से इनफैक्ट दैट वाज द फिफ्थ गेम दैट यू प्लेड जिसमें जी आपने कंसीड किया, एंड देन यू जी केम बैक होम जिसमें 0-0 स्कोर लाइन रही, लेकिन जी दैट वाजंट इनफ फॉर मुंबई टू गो थ्रू। बट दैट वाज अ ग्रेट सीजन। आल्सो मुंबई फिनिश्ड एज द लीग टॉपर्स दैट सीजन, आई रिमेंबर करेक्टली। जी। तो पर्सनली फॉर यू आल्सो एंड फॉर अ टीम आल्सो, दे मेट देयर गोल। काफी सारे लोग पूछ रहे हैं हम हिंदी में क्यों बात कर रहे हैं। अमरिंदर, आप इसका जवाब दे दीजिए प्लीज। क्योंकि हिंदी हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है, हमें हमेशा हिंदी में बात करनी चाहिए, मैं सबको कहना चाहूंगा। ठीक है, इंग्लिश अच्छी लगती है बोलने में, तो मैं हमेशा कंफर्टेबल रहता हूँ कि मैं कभी भी इंटरव्यू दूं तो मैं हमेशा हिंदी में। That's it. I just wanted them to hear it from you because since you're from Punjab and I can't speak Punjabi, I think the only common language that we have in particular is Hindi. So why not? हिंदी। Let's try and be in the language that you're most comfortable in, Amrinder, and I'm absolutely fine with that. Now moving on, season 3 की तो बातें हो गई. Season 4 didn't quite go to plan according to Mumbai City FC. लेकिन आपने गोयान की बात की. Now गोयान भले ही चेन्नई चले गए हों,
but he's a very close friend of yours. I see Goyan standing in the team lineup. He's singing the national anthem. I see his son Luca, I think his name is. वो हमेशा स्टैंड्स में रहते हैं और वो चेयर करते रहते हैं. गोयान के साथ ये रिलेशनशिप कैसे डेवलप हुई एंड हाउ डिड यू बिकम सच गुड फ्रेंड्स? आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट लाइक बेस्ट बडीज, है ना? हमेशा ही हम लोग बहुत अच्छे क्लोज थे, क्योंकि ट्रेनिंग में भी हम लोग बहुत ही अच्छे से बात करते थे कि जब ये सिचुएशन है तो हमें ये करना चाहिए, क्योंकि उसको भी वो चीजें पसंद है कि हम लोग पहले से ही प्लान करके रखें. और मैं भी यही चीजें चाहता हूँ कि हमारा एक प्लान होना चाहिए. हम डिफेंडर है, गोलकीपर है, राइट बैक, लेफ्ट बैक, हमारे बीच में एक बॉन्डिंग होनी चाहिए कि हमें क्या करना है. हमें एक दूसरे के लाइक आई कांटेक्ट से ही समझना चाहिए. तो उसी टाइम से हमारी पहले सीजन से ही मैंने बोला कि 6 गेम खेली थी मैंने, तो उसमें ही मेरी इतनी अच्छी उसके साथ बॉन्डिंग हो गई थी, तो कि हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए थे. ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड, हम लोग जब भी डिनर पे जाना है, जब कुछ भी करना है, तो सब एक साथ ही जाते थे. तो मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे. और एक उसने मुझे प्रॉमिस किया था, आई थिंक जब उसका सेकंड सीजन था मुंबई में, तो कि जब मैं नेक्स्ट सीजन आऊंगा मुंबई में तो मैं नेशनल एंथम गाऊंगा. तो वो एक मेरे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट थी कि वो एक सीखना चाहता है. अगर उसको कोई भी हेल्प चाहिए, उसको मैंने बोला कि अगर तुझे कोई भी कहीं से नहीं पता चले तो मुझे कॉल कर सकता है. लेकिन जब वो आया वापस तो हमेशा मेरे साइड में खड़ता था. पहले दिन से ही हम लोग एक साथ जब लाइनअप होती थी तो एक साथ ही होते थे. तो उसने वो सिंग स्टार्ट किया और जब मैंने सुना तो वो मुझे लग रहा है कि एकदम परफेक्ट लाउडली सिंग कर रहा था. फैंटास्टिक. और सही में जब कई हम लोग कैमरा पे भी देख रहे होते हैं, उनकी लिप सिंकिंग इज ऑलवेज एब्सोल्युटली परफेक्ट. बट आई थिंक एक बार we'll have to get him to sing it on camera as well, because you know, that is something special. I haven't seen any other foreigner do it like the way Lucian Goyan does it. Anyway, now he's a rival for you because now he's gone to Chennai and he captains Chennai. तो हम उनके बारे में आगे बात करेंगे in a different context. But you know, just talking about some of your other friends who are also your rivals in many ways. Indian team की आपने बात की when you got that first call up for the senior team. There is a very good Indian goalkeeper who goes by the name of Gurpreet Singh Sandhu. When you talk of the Indian team, you talk of Gurpreet Singh Sandhu, you talk of Amrinder Singh. कि इंडिया की फुटबॉल टीम कितनी लकी है कि दो इतने जबरदस्त गोलकीपर हमारे साथ एक ही एरा में खेल रहे हैं. What is your relationship like with Gurpreet? And मतलब आप लोगों का कैसा what is your relationship like ड्रेसिंग रूम में, और जब आप एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं to be better than what you are already? हम लोग बहुत ही अच्छे और क्लोज फ्रेंड है, लाइक ब्रदर हम लोग हैं. और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको ऐसे उससे भागते नहीं है. कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका हम सामना करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए. हम लोग हमेशा उसका सोल्यूशन निकालने के लिए ट्राई करते हैं. तो मुझे लग रहा है यही रीजन है कि हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं और उससे वो भी इम्प्रूव हो रहा है, मैं भी इम्प्रूव हो रहा हूँ. जब भी ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है हम लोग एक दूसरे को पुश करते हैं हमेशा एक दूसरे को कि जितना भी कॉन्फिडेंस दे सके कि बी फ्री, अपना गेम खेलना है, जाके कोई प्रेशर नहीं. तो मुझे लग रहा है हमारा दोनों का बहुत ही अच्छा रिलेशन है. इसकी वजह से ही हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं. जब आईएसएल चल रहा होता है तब भी हम दोनों टच में रहते हैं नॉर्मली कि ये हो रहा है और इस पे क्या करना चाहिए. अगर हम लोग जो भी छोटी छोटी गलतियां होती है, जो भी छोटी छोटी चीजें इम्प्रूव करने वाली होती है, उससे हम कभी भी भागते नहीं है, उसको फेस करते हैं और उसको फिक्स करने का ट्राई करते हैं जितना जल्दी हो सके. और मुझे लग रहा है हम लोग को यही रीजन है कि हम लोग ज्यादा बात करते हैं. यही रीजन है कि हम एक दूसरे को इम्प्रूव करवा रहे हैं दोनों को. फैंटास्टिक. और आपके एक और बहुत अजीज दोस्त हैं वहां पे, एंड ही गोज बाय द नेम ऑफ Sandesh Jingan in that dressing room. Now, what is this whole story of Sandesh Jingan? Amrinder, let's clear the air. What is the reason कि आप कोई भी पोस्ट डालें, चाहे वो पोल के अगेंस्ट हो, चाहे वो ग्लव्स के साथ हो, चाहे वो वर्कआउट करते हो, but Sandesh Jingan has to comment on it, and not in a very polite way sometimes. Just like two friends would pull each other's legs. थोड़ा बताइए, because like Bengaluru FC also just commented, you guys are friends and rivals both. तो हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है. मुझे लग रहा है मेरा बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं कहूंगा. By the way, let me just stop you. Sorry, let me just stop you. Sandesh has just sent a message saying copy में से देख के बोल रहा है. So what is this banter all about? Come on, tell us. ये यही काम होता है. वो हमेशा हम लोग एक दूसरे की फोटो पे कमेंट करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं. मुझे लग रहा है यही चीजें हैं जो हमें इतना ज्यादा क्लोज रख रही हैं. और कुछ भी होता है हम दोनों
एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, और नेशनल टीम में भी हम लोग दोनों रूम पार्टनर होते हैं, तो एक दूसरे की खींचने का काम हमेशा लगा रहता है। और कभी कभी तो ये मुझे याद है कि मेरा फोन लेके मेरे इंस्टाग्राम से किसी की फोटो पे कमेंट, कभी कुछ, और बाद में मुझे जब ये फोन रखता था मुझे पता चलता था कि कुछ तो गलत हुआ है मेरे फोन से। तो ऐसी नॉर्मल चीजें चलती रहती है हमारे बीच में। Nice, and long may it continue, because ye dekhiye, and there's another friend of yours who goes by the handle of Oye Gulati, who'd also been messaging, and I think he wants to hear a song from you. I don't know if you're a good singer, Amrinder, but I'm maybe this very is your bad singer. chance. Ignore him, Paji. Ignore him. I always ignore him. Anyway, hi to Mr. Oye Gulati, Sandesh Jingan, Mumbai City FC are also on this live. Bengaluru FC have also commented. Thank you so much, guys, for joining us, and I'm sure fans are listening to this. Okay, let's do something fun. Let's try a new segment on this Let's Football Live, which is you have to guess the player. I'm going to give you 3 or 4 clues, and you have to try and guess the player I'm talking about. You ready? Okay. अब देखते हैं आप कितना कॉपी अब देखते हैं आप कितना कॉपी से पढ़ रहे हो, like Sandesh Jingan was saying, right? So prove him wrong. Right. The first clue about the player's name you have to guess is, I was the captain of India when you made your national team debut against Mauritius in a 2-1 win. He was the captain of India when you made your national team debut against Mauritius in a 2-1 win. JJ? And fans can help him guess as well. Yeah. Sorry, who? JJ? No, so I'll give you a second clue. So that one is wrong. Second clue is, only Mandar Rao Desai has more appearances for a single Hero ISL club than me. As in, than that player. Sandesh So Jingan. Mandar ne usse... that's the one. And he's commented once again. He's saying, Chal Amrinder Chachu ko dance karke dikhao. Right. So somebody wants you to sing, somebody wants you to dance. I'm sure Sandesh Jingan has a lot of pranks planned for you the next time you're in the national team camp. But this is great fun. All right. That was a good guess, by the way, but that was only the first answer. So ye to aapne second attempt mein guess kar diya. I'll give you some more, should I? Then the next one is, I made my professional debut with the same club you made your professional debut with. ऐसे तो बहुत players हो सकते हैं, but the one I'm talking about, the second clue is, I made my national debut in Sunil Chhetri's first match as national team captain. Any viewers want to guess this? Who am I talking about? Which player? अमरिंदर को थोड़ा सा टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अपना प्रोफेशनल डेब्यू उसी क्लब के साथ किया जिसके साथ अमरिंदर ने अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया। ये एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपना पहला मैच सुनील छेत्री के पहले मैच एज कैप्टन में खेला। So obviously the answer cannot be Sunil Chhetri. No. And then I am one of the 2 Indian players to be the all-time top scorer for my ISL club. तो ये अपने ISL club के लिए all-time top goal scorer. That's the one. Not bad. So Sandesh is a better friend of yours. You guessed him in 2 attempts. And now this is JJ on the 3rd attempt. Well done. Last one. Last player that you have to guess is I scored a winning goal against you in Hero ISL 2019-20. 2019? I scored a winning goal against you in Hero ISL season 2019-20. मतलब जो अभी सीजन खत्म हुआ है हमारा 6ठा सीजन, उसमें इस आदमी ने आपके अगेंस्ट विनिंग गोल मारा था। Second clue, you broke my record of most appearances for Mumbai City FC in ISL. Lucian Goyan. That's the one. Not bad. So Sandesh in 2 guesses. There's somebody else who's also guessed Lucian Goyan. Thank you. Vada Pav. He goes by the handle of Vada Pav. Our captain Goyan, he says. So I'm guessing he's a Chennai fan because the captain Goyan is now the captain of Chennai. Another somebody is saying, I am Yash WBU is also guessed Goyan. Well done, guys. Kunal, Gautam. Well done, everybody. And well done, Amrinder Singh. Not bad. Thank you, buddy. Sandesh Jingan and Goyan in 2 guesses. That's not a bad start at all. Right. Okay, moving on. Now, we've got to talk about this season, Amrinder bhai, because season 6, Mumbai almost came close to qualifying for the semis. Agar Goyan nahi hote, to shayad kahani kuch aur ho sakti thi. But the season started in Kochi with what I think and a lot of people believe is one of the saves of the season. And that was against Bartholomew Ogbeche. Mumbai 1-0 se aage tha, and you in a packed Kochi stadium, you came up with one of the best saves. How was the season personally for you, starting from that save all the way till till Goyan denied you guys a place in the semi-final?
मुझे लग रहा है कि हमारा सीजन बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ था और हमने फर्स्ट 2 गेम में क्लीन शीट रखी चेन्नई के साथ और केरला के साथ। उसके बाद भी हमारा इंजरीज थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, क्योंकि मोस्टली मुझे लग रहा है 6-7 प्लेयर्स को इंजरी हुआ। सुगु को, मचाडो को इंजरी हुआ बाद में, और बोर्जेस Yeah. भी बीच में इंजर्ड था, और बहुत सारे प्लेयर्स थे। मुझे लग रहा है मैं अपनी टीम के ऊपर प्राउड प्राउड फील करता हूँ कि इतने इंजरीज के बाद भी हमने कभी भी ऐसे गिव अप नहीं किया, कि हम लोग हमेशा ही एक लाइक टॉप 4 में, टॉप 5 में बने रहे, कि हम लोग लास्ट मोमेंट तक वो सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए फाइट करते रहे। तो मेरे लिए कि ये प्राउड मोमेंट है कि हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, और इतनी इंजरीज को फेस करने के बाद भी हमने कभी गिव अप नहीं किया। आपने देखा होगा कि कुछ गेम्स में हमने मुझे लग रहा है जमशेदपुर, जब हम लोग होम खेल रहे थे, तो लास्ट मिनट में हमने उनके अगेंस्ट गोल किया। तो वो अगर हम लोग वहां पे गिव अप करते तो मुझे लग रहा है वहां पे हमारा सेमीफाइनल का स्पॉट खत्म होता था। तो Yeah. वहां पे उस टाइम पे भी हमने कभी भी गिव अप नहीं किया, कि लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है जितना भी हो सके, बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे ही चेन्नई के साथ, ठीक है, लुसेन गोए ने स्कोर किया, उसके बाद भी हमारे पास चांस था, लेकिन हमने एक सेकंड के लिए भी गिव अप नहीं किया कि हम लोग को ये गेम हारना है, एटलीस्ट ड्रॉ भी करते हैं तो उनके स्कोर पे आगे जाके डिसाइड होगा। तो मुझे लग रहा है कि मैं प्राउड हूँ कि जो भी मेरी टीम ने परफॉर्म किया है। तो एक, ठीक है, हम लोग अनलकीली नहीं पहुंच पाए सेमीफाइनल में, तो मैं अपनी टीम के लिए प्राउड फील करता हूँ कि हमने लास्ट मोमेंट तक फाइट किया है। Yeah, बिल्कुल and you know personally for you some great saves in there, but काफी सारे इंडियन प्लेयर्स भी मुंबई सिटी के इस स्क्वाड में थे. You talk about Rainier Fernandez. He had a a breakthrough season in many way. Sarthak Goloi जो पुणे से Mumbai City FC आए. Saurav Das got a few opportunities in the midfield as well, and not to forget Pranjal Bhumij ने पिछले सीजन मतलब सीजन 2018-19 में कमाल का गोल मारा था. आई थिंक इन केरला ओनली ही स्कोर्ड दैट केरला गोल. only। सो सम ऑफ दीज इंडियन प्लेयर्स हु आर कमिंग थ्रू मुंबई सिटी एफसी, आप उनसे इतना इंटरेक्ट करते हैं, यू वॉच देम क्लोजली. व्हाट डू यू मेक ऑफ देयर परफॉर्मेंस? मुझे लग रहा है हमारे पास में अगर हमारा इंडियन स्क्वाड देखा जाए तो मोस्टली बहुत सारे प्लेयर्स यंग है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग में अपने आप को शो करते हैं। हमेशा ही मैंने उनको देखा है कि कोई भी ऐसा नहीं देखा वहां पे कि कोई भी गिव अप करने के लिए कि ये लोग खेल रहे हैं मुझे चांस नहीं मिल रहा है। जहाँ मैंने हमेशा ही प्लेयर्स देखे हैं जो हमेशा मोटिवेट रहे हैं। रेनियर है, सार्थक है, प्रांजल था, विपिन था, विद्या था। तो विद्या की एग्जांपल देता हूँ, उसको ज्यादा चांस नहीं मिला, जब चांस मिला उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लग रहा है 2-3 ऐसे असिस्ट भी किए उसने, और एक स्कोर किया जमशेदपुर के साथ। जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को परफॉर्म किया है। तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ कि हमारे पास ऐसे यंग प्लेयर थे जो कभी भी गिव अप करने वाले नहीं है और हमेशा ही हार्ड वर्क करते हैं, ट्रेनिंग में अपना बेस्ट देते हैं। Gurpreet Singh Sandhu has also joined our live. He's calling you "Oye hoye smart munda." हम्म। Even though Sandesh Jhingan will never agree with that. You can say hi to him. संदेश, गुरप्रीत पाजी सत श्री अकाल। ऑस्ट्रेलिया मजे ले रहे हैं? He's in Australia ना? Cool. Yeah, he's in Australia. He's flipping tires. He's doing a lot of work over there. Very good. मतलब Instagram पे भरोसा करेंगे तो at least you'll have to believe that he is. Not bad at all. Thank you, Gurpreet, for joining us. We'll chat very soon. Sandesh Jhingan continues to have to take digs at Amrinder in the meanwhile. Okay, so that was about the Indian players, and then the other thing I wanted to ask you was about captaincy. But before that, the one Indian player that everybody has been talking about, I think काफी लोगों ने उन्हें अपनी टीम ऑफ द सीजन में पिक किया है, not just because he's an Indian और एक बैलेंस मेंटेन करना होता है, because उसकी रेपुटेशन उस खिलाड़ी की इतनी बढ़ के आई है सीजन 2019-20 में. We got to talk about Roland Borges. What has Roland Borges done, Amrinder? Because you get to see him behind the scenes, that he's improved so much as a player. Is it George Costa? Is it Elko Shatori before him? Is it Igor Stimac, Stephen Constantine? क्या रीजन है कि रोलिन बोर्जेस एक इतना जरूरी प्लेयर हो गया अपने क्लब और कंट्री के लिए? मुझे लग रहा है मैंने उसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ। जो मैंने उसका अभी ये साल वर्जिन देखा है, और वो अभी बेस्ट फॉर्म में चल रहा है और बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और उसका रीजन है, मैं उसको हमेशा देखता हूँ कि मोस्टली जो इंडियन प्लेयर्स हैं उन्होंने
अपनी डाइट्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके हैं। सब लोग अपना प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करते हैं। मुझे लग रहा है ये भी रीजन हो सकता है उसका कि वो एक प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो कर रहा है। और मैंने उसको ट्रेनिंग में भी देखा है, इज जस्ट स्माइलिंग ऑलवेज। कभी भी कुछ भी होता है हमेशा उसके फेस पे स्माइल रहती है, और अपने काम को कभी वो अधूरा नहीं छोड़ता है। देखा मैंने उसको कि कोई भी उसको काम दो वो अपना बहुत ही एक अच्छे से प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ सीरियसली करता है। और मैंने उसको मोस्टली हमेशा ही, हम लोग इवनिंग में ट्रेनिंग करते थे, मोस्टली उसको मैंने सुबह जिम में देखा है कि हमेशा ही सुबह जिम में स्विमिंग पूल अपने बैंड लेके हमेशा ही जिम में या कहीं भी पार्क में अपना लगा रहता था। मुझे लग रहा है एक यही रीजन है कि वो अभी एक अपनी बेस्ट फॉर्म में चल रहा है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा अच्छा लड़का है और हमेशा स्माइल के साथ अपना काम करता है। तो Yeah. I know he's got the greatest smile, I think, in the Indian football team. No offense to anybody watching this in the national team, by the way, but also somebody has been calling him Tank. Should we just name him the Smiling Tank from now on? Because he's a tank. He's literally yes, he's unstoppable. 12 से 14 किलोमीटर हर मैच में वो कवर कर रहा है. He's giving assists. Elko Shatori also said that a lot of people think Borges is a defensive player, लेकिन मुझे ऐसा लगता है he's a goal scoring midfielder and somebody who should be used in a lot of attacking positions. You agree with that? यस भाजी, क्योंकि उसके पास वो क्वालिटी है कि पास देने के लिए, असिस्ट करने के लिए, हाइट है अच्छी, तो हेडिंग पे भी अच्छा है। जब भी मैंने उसको देखा है कभी डरता नहीं है, अपना ब्रेव है और हमेशा ही लाइक एक टफ वाला रहता है ना कि वो कि कुछ Yeah. भी हो जाए मुझे अपना बेस्ट देना है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, उसको कह सकते हैं कि अटैकिंग में भी बहुत अच्छा है वो। इसीलिए मुझे लग रहा है हमारे मुंबई के लिए उसने बहुत ही अच्छा उसका सीजन रहा है। वन ऑफ द बेस्ट मैं मानूंगा कि बहुत अच्छा सीजन था उसका ये। Fantastic. And another very important player for Mumbai City FC is Paulo Machado. और आप दोनों के बीच में कैप्टन आर्मबैंड जो है वो जगल होता रहा. I think away matches में आप कैप्टन रहते थे, home matches में Paulo रहता था. What was the experience of playing with Paulo Machado? Because he had so much experience of having played abroad and come. तो उनके साथ जो आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, what all did you learn from him and how was it managing the captaincy with him? Was that a problem? ऐसा नहीं था कि अवे गेम में वो करता है या होम गेम में मैं करता था। कोच ने हमें दोनों को एज ए कैप्टन चुना था कि आप दोनों सीनियर हो तो दोनों ही लाइक एक कैप्टन हो मेरे लिए। कि ऐसा नहीं कि एक कैप्टन है या कुछ भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किसको बैंड पहनना है, कि बैंड पहनना है या किसको बैंड का। उसने भी हमें बोला था कि बैंड का कुछ नहीं होता, एक लीडर होना चाहिए, कि उसको जरूरी नहीं कि उसके आर्म में बैंड रहना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया था कि 2 गेम में लाइक तू कैप्टन रहेगा या 2 गेम में मैं कैप्टन। तो ऐसे ही हमारा चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं था कि कैप्टन या कुछ आर्म बैंड के लिए। हम लोग बहुत ही फ्रेंडली थे। ऐसा मैं तो हमेशा ऐसे कुछ नहीं होता था मेरे दिमाग में कि हाँ मुझे पहनना है या इसको पहनना है। मुझे लग रहा है वो भी बहुत फ्रेंडली था, ऐसी चीजें वो बिल्कुल भी नहीं नोट करता है। और हाँ, एज ए टीम में उसका रहना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बीच में जब इंजरीज भी हुआ उसको, और वो वापस आके हमेशा ही ग्रुप में बना रहता था हमारे साथ बात करने के लिए कि कभी गिव अप नहीं करना है। मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छा लीडर भी है वो, तो हमेशा ही टीम को गाइड करता है। और मुझे लग रहा है हमारी टीम में वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं कह सकता हूँ उसको। तो मेरी और उसकी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, और उसका जो बिहेवियर है पूरी टीम के साथ बहुत ही मुझे लग रहा है अच्छा है। कभी भी वो आता है, कभी नहीं देखता जूनियर प्लेयर है या सीनियर प्लेयर है। हमारी टीम में एक मुझे लग रहा है यही एक बहुत अच्छी बात थी कि कोई भी ऐसे सीनियर प्लेयर या जूनियर प्लेयर कोई भी ऐसे नहीं था कि सीनियर है जूनियर है। जो जूनियर है वो हमेशा सीनियर से बात करते थे, जो सीनियर है हमेशा जूनियर की हेल्प करते थे। मुझे लग रहा है एक फैमिली की तरह हम लोग की टीम में माहौल बना हुआ था। ये इस चीज का रीजन मैं कह सकता हूँ कि कोच भी था, क्योंकि वो एक बड़े लेवल के कोच रह चुके हैं और उनको पता है कि एक टीम को कैसे हैंडल करना है। कोई इंडियंस नहीं, कोई फॉरेनर्स नहीं, कोई जूनियर्स नहीं, कुछ नहीं था हमारी टीम में। जो गलती कर रहा है उसको सजा भी मिलेगी, जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं था। एक मतलब सबके लिए एक उनके सेम लेवल था कि हाँ तुम लोग प्लेयर्स हो, जो अच्छा करेगा वो खेलेगा। A lot of Mumbai fans are watching this, Amrinder, and calling him the magician, Apun ka magician, and that's exactly who Machado was. अगर उनको इंजरी नहीं होती तो maybe the story could have been different in season 2019-20.
But let's talk about George Costa because he's not going to continue with Mumbai City FC. लेकिन 2 सीजन मुंबई के साथ रहे. What was your experience of playing under George Costa? उनके साथ आपने क्या क्या सीखा? Because he came with a Champions League winners mentality as well before he became coach. तो मुझे लग रहा है उनका सबसे मेन बात जो मैंने सीखी है कि वो हमेशा ही एक लाइक ड्रेसिंग रूम का माहौल और टीम का माहौल एक ऐसे टीम की तरह नहीं रखते थे. एक उन्होंने एक हमारी टीम में एक माहौल बना दिया था कि जो एक फैमिली की तरह हो. किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो सब लोग एक साथ होके उसको फेस करते थे. तो मुझे लग रहा है ये रीजन है कि हम लोग टिल लास्ट मोमेंट तक फाइट करते रहे हैं. तो उन्होंने एक तो उनका एक मेंटालिटी था कि हमेशा विनिंग मेंटालिटी. ये भी एक रीजन हो सकता है कि हम लोग लास्ट मोमेंट तक फाइट कर रहे हैं, कभी भी गिव अप नहीं करना है. क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेवल के प्लेयर रह चुके हैं, चैंपियंस लीग जीता है, बड़े बड़े कोचेस के अंडर खेले हैं. तो उनको पता था कि टीम को कैसे हैंडल करना है. लास्ट 2 साल में मुझे लग रहा है बहुत कुछ सीखा है ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड. वो मुझे लग रहा है किसी भी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं थे कि हम लोग कोच की तरह. हमेशा ही हमारे साथ जब भी बात करते थे एज ए फ्रेंड, कोई भी हमें सोल्यूशन चाहिए तो एज ए फ्रेंड थे हमारे साथ. जब हम लोग फील्ड पे होते हैं तो एक उनके देखने से ही पता चलता था कि हाँ उसको जब हम ग्राउंड में हैं तो उसको आपका 110% चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई लेजी या कुछ भी, उनको बिल्कुल चीजें वो पसंद नहीं थी. तो मुझे लग रहा है कि यही रीजन है कि हमने टिल लास्ट मोमेंट तक फाइट किया और बहुत अच्छे लास्ट सीजन हम था. ये सीजन सॉरी थोड़ा सा एंड में कट गया अमरिंदर. कैन यू जस्ट रिपीट दैट? ये सीजन हमारा बहुत ही ये लास्ट सीजन हमारा. हेलो तो सॉरी थोड़ा सा कनेक्शन में डिस्टर्बेंस है अमरिंदर. Is that on your side or is it my side? I'm not very sure, but anyway. Yeah, thanks guys. Thanks for all the yellow hearts. I see Gurpreet's also joined this discussion once again, or maybe he stayed on. Just waiting for Amrinder's connection to settle down. Amrinder bhai, you back with us? Yes, bhai. Thanks for that. Sorry, आवाज ब्रेक हो रही थी थोड़ी सी. हाँ जी. तो मुझे लग रहा है लास्ट सीजन भी हमने इसी वजह से इतना अच्छा परफॉर्म किया और ये सीजन भी हमारा जो परफॉर्मेंस था टिल हम लोग लास्ट मोमेंट तक फाइट करते रहे. उसका रीजन एक ये भी है कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कोच था, एक्सपीरियंस था उसके पास. तो हमने बहुत कुछ सीखा है कि कैसे लाइक हमेशा ही अपना बेस्ट देना है और कभी भी गिव अप नहीं करना है. Fantastic. I'm going to digress a little bit. थोड़ा सा मैं deviate कर रहा हूँ अपने point से, but that was great insight. Thank you very much. Gurpreet Singh Sandhu has asked you to share a story of how you went to the barber instead of going to school. आप नाई के पास गए स्कूल जाने के अलावा. What is the story? Please tell us. Since he's with us, you may as well let me know. भाजी मैं बताता हूँ आपको. मैं जो स्कूल में था वो लाइक खालसा स्कूल, एक खालसा स्कूल था. तो मेरे मॉम डैड मुझे अलाउ नहीं करते थे. जब मैं मुझे लग रहा है 10-12 साल का था, 12-13 साल का था, मेरे एक बड़े हेयर होते थे तो कट नहीं करने देते थे. सडनली एक मूवमेंट पे हुआ कि मैंने हेयर कट अपना कट करवा दिया. उसके बाद घर की सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी कि पैसों के लिए या कुछ भी, तो उन्होंने बाद में मुझे एक बार तो कट हो गया. उसके बाद मुझे लाइक कहीं से आया नहीं कि मैं जाके अपना हेयर कट करवा सकूं. उसके बाद धीरे करते करते पाजी बाल बड़े हो गए. तो उसके बाद जब मैं और खालसा स्कूल में था तो बड़े बाल हो गए. फिर से मैंने वो पगड़ी बांधना स्टार्ट कर दिया. तो खालसा स्कूल में जब देखा कि लड़के ने अपने बाल बड़े किए हैं तो उन्होंने मुझे ऐसे लाइक एक सम्मानित किया कि जैसे एक ट्रॉफी के साथ, और आई थिंक 500 रुपया कुछ दिया. और मैंने सीधा पैसे लेके पहले घर जाने की बजाय सीधा शॉप पे जाके अपने बाल कट किए. So obviously this is quite a common story in the national team because if Gurpreet's asking that means I'm sure. क्योंकि वहाँ पे right, okay.
नेशनल टीम में जब हम खाना खाते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें, स्टोरीज चलती रहती है। What is the one story that you've heard in the national team camp जो आप share करना चाहोगे हमारे साथ? Because I'm sure there'll be people. The funniest story. I remember there was one story Sandesh Jingan told me about Jackie Chan Singh getting a tattoo of a tree. Any story that you can remember from the national team या ऐसी कोई funny incident हुआ where मुझे एक गुरप्रीत की याद है अभी स्टोरी, उसकी सुनाता हूँ। Yeah, why not? Let's hear it about Gurpreet. Come on. तो हम लोग ऐसे स्टडी को लेके बात कर रहे थे कि गुरप्रीत बोल रहा है कि हम लोग मैंने एग्जाम दिए स्कूल में, तो पता नहीं कौन सा सब्जेक्ट था, कि मैंने बोल रहा है कि मैंने बहुत लिखा उसमें, और जब लाइक चेक होके पेपर वापस आए तो मैम ने उसको लाइक नंबर दिए थे -1। ऐसा भाई कभी किसी के साथ हुआ है कि -1 दिया है? पता नहीं क्यों कि लाइक माइनस भी नहीं, -1 दे दिया था उसको, कि इतना गलत था वो स्कूल में। The only person the only group I'd probably see giving Gurpreet -1 is the Mumbai City FC fans. Apart from that, nobody else, I doubt, because they love you so much. But yeah, that's a great story. Thank you so much. And speaking of Mumbai City FC, Amrinder, now that the City Football Group takeover has happened, what changes do we expect in Mumbai City FC that you can tell us about, or what do you see as the future of Mumbai City FC now that this massive takeover has happened? मुझे लग रहा है पाजी एक बहुत ही एक अच्छी डील है मुंबई की जो सिटी के साथ हुई है। तो एक मैं कह सकता हूँ कि एक नया प्लेटफॉर्म एक मिला है, जो यंग प्लेयर्स हैं, जो इंडियन प्लेयर हैं, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिला है कि एक हमें अपने सीखने के लिए वहां से बहुत कुछ मिल सकता है। एक बहुत ही एक अच्छी बात है हमारे लिए, कि मैं अपना बोलता हूँ कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात है। आने वाला जो सीजन होगा एक नई शुरुआत है हमारे लिए, कि जो सिटी के साथ है, तो हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मुझे लग रहा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक और ये जो जितने भी आने वाले अभी यंग प्लेयर हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लग रहा है कि वो सब लोग आना चाहेंगे कि वो वापस मुंबई में आए। तो सबका एक ड्रीम होगा कि वो मुंबई में आए, और सिटी ग्रुप के साथ उनका कॉन्टेक्ट है और टाई अप है, और जितना भी हो सकता है वहां से सीखें। और एक मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द बिगेस्ट डील है ये इंडियन फुटबॉल के लिए। तो मुंबई मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में एक ऐसी टीम बनेगी कि इंडियन प्लेयर का एक ड्रीम होगा कि वहां पे जाके वहां से सीखे। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बहुत अच्छे कोचेस स्टाफ आने वाला है, या कुछ भी। तो जितना भी मुझे लग रहा है कि हम लोग वहां से अभी सीखेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और इंडियन प्लेयर्स के लिए भी है कि यंगस्टर है, उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है। वो सब लोग वहां आना चाहेंगे और सीखना चाहेंगे जितना भी ज्यादा हो सकता है। Yeah, fantastic, and we wish Mumbai City FC and the City Football Group all the very best. Gurpreet has left the discussion now. He's saying he's going to flip more tires. Australia जैसा weather हो तो even I don't mind flipping tires at the moment. But anyway, now something interesting coming your way. Now we started this segment on Let's Football Live called One Touch Let's Football, which basically means कि आपको या तो one word या one sentence में answer करना है for whatever I'm going to ask you. Because a lot of fans come up with different kind of questions, so I've sort of put them together in one round, and so that I can ask you quickly and you can reply as quickly as possible to all the fan questions that have come for you. Okay, so are you ready for One Touch Let's Football? Ready, buddy. Okay, the first question from Imad Aslam. वो पूछ रहे हैं toughest striker for you. Ian Hume. Ian Hume. Okay. Shayant Pradeep says unforgettable penalty shot that you've ever faced. Sunil Chhetri is always very good in penalties. Okay. Should be going to your right, no? Yes. Usually. Top and right. One is, I think, Ilano. In first season, we playing against Chennai when I'm in Calcutta. तो पेनल्टी लिया था, इतनी पावर से आया था, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था उस टाइम पे, तो वो भी मैं कह सकता हूँ। So छेत्री एंड इलानो बोथ, तो मतलब दोनों को आप काउंट कर रहे हैं उसमें। ओके, फैंटास्टिक। आकर्ष गुप्ता इज आस्किंग, आपने किस उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू किया? व्हाट एज डिड यू स्टार्ट प्लेइंग फुटबॉल? मैंने, मुझे लग रहा है 15 साल का था जब मैंने लाइक स्कूल में अपना
गोल कीपिंग स्टार्ट की थी। तो जो नॉर्मल मैं फुटबॉल खेलता था अपने गांव में, वो तो एक होता था कि जस्ट शाम को जाना है कि ग्राउंड में जाके अपना टाइम पास के लिए। तो जब मैं एकेडमी में गया था, मैं 15 साल का था। It's great. There's some great stories and great success stories from Punjab also. उसके बारे में भी I'd like to ask you one question later on, but we are carrying on with our rapid fire one touch let's football. So Navneet says a defender you would love to have on your side. संदेश जिंगन। कैसा defender जो आपकी टीम में? तो संदेश जिंगन. Okay, that was easy for you. I thought you might say Goyan because Goyan is not on your side anymore, but this is interesting. I already play with ठीक him. है. Now I want to play it in future. We will play together. Yeah. Even In after IPL. all the insulting things that he said for you, he's saying you don't have a beard, you have face paint, and you have a tree on your head, and I don't know what all. Okay, anyway, I'm sure you guys are good वो friends. normal है Okay. हमारे बीच में Manu चलता रहता है। says, fair enough. Okay, Manu says, why do you spam everybody's Instagram live? Sorry पाजी। He's saying, why do you spam everybody's Instagram live? Is there an answer for that? No answer. Okay, we will skip that question from Manu. Arun Jaikar says your best friend. Let's say your best Indian friend and best foreigner. In this moment संदेश जिंगन एंड फॉरेनर मैं कह सकता हूँ लुसिन गोयन था, मचाडो था, तो दोनों। Between अभी अभी Machado अभी and अभी Goyan. अभी कह सकता हूँ कि मचाडो, क्योंकि वो मेरे साथ है, अगले साल भी मुंबई में रहने वाला है, तो मचाडो। Right, Portugal greater than Romania. Okay, why not? फिर Chowkidar YP10, interesting name, says favorite foreign player. मैं जब स्टार्ट किया था अपना फुटबॉल, मैं जिराड का बहुत बड़ा फैन था। वो गेम देखने के बाद जब मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे फुटबॉल खेलना है, तो उस टाइम से मैं जिराड का फैन था। और गोलकीपिंग में भी एलिसन। Okay, yeah, why not? Is he in terms of your goalkeeping idol? I don't see a question about that, but goalkeeping idol आपके कौन रहे? मैं पहले जब स्टार्ट किया था, मैं तो बुफन को फॉलो करता था, बीच में फिर इकर कैसिलस था, तो सबको मैं जस्ट पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो बुफन था, उसको ही मैं लाइक फॉलो करता था। और कैसिलस था, अभी एलिसन है, अभी तो जस्ट जितना जिससे भी सीख सकते हैं वो चल रहा है। Okay, I'm going to take one from the comment section also. Your favorite Indian striker? सुनील छेत्री। He wanted you to say Sunil Chetri, so you've heard his call. Okay, Shubham Vora 2006 says, Paji, say something about the West Coast Brigade in one word or one sentence. They are like caffeine for me। जब भी मैं स्टेडियम में जाता था तो एक उस टाइम पे ऐसा माहौल होता था कि तुझे कॉफी पीने की जरूरत नहीं है, स्टेडियम में जाके एक अलग सी एनर्जी आती है। I know as soon as you walk out of the tunnel, they're to your left over there cheering loud and proud. It's absolutely fantastic. I mean, the atmosphere they create. Okay, Surya Deep, your favorite cricketer? विराट कोहली एंड MS धोनी। Okay, if you were to pick one, Virat Kohli or MS Dhoni? MS धोनी। Okay, fair enough. Mr. Dreamer says, reason of your long hair. Reason for your long hair, rather. ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट नॉर्मल समथिंग चेंज। अभी जस्ट I don't see it very long. I mean, it's. नहीं, I अभी know, नहीं, because just you got help before, at. before। हाँ, अभी तो मैंने कट कर दिया ऑलरेडी, तो देखते हैं आगे क्या आता है। ऐसा कोई रीजन नहीं Yeah, था, see, you got help. जस्ट नॉर्मल था। You've got help at home, so that obviously helps you. Tanmay Smart says, can you say something about the previous club, ATK? You can say it in a word or you can say it in a sentence. मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे। तो वहाँ के फैंस, जो फुटबॉल का माहौल है, हमेशा ही एक अमेजिंग रहा है मेरे लिए। We're just waiting for your connection to settle one sec. Yeah, now I can hear you. यस पाजी। So yeah, you said the fans over there and the stadium. यस। The fans. Okay, fair enough. And should we take one last one, which is Saju Mohanan. He says 3 things a goalkeeper prepares before a penalty.
I'm sure you do your preparation before you go into a game for if there were to be a penalty. जस्ट वो एक मोमेंट ऐसा होता है कि हमें रीड करना होता है कि आप वो जितना भी ज्यादा प्रेशर दे सकते हो, फर्स्ट थिंग कि जितना भी ज्यादा प्रेशर दे सकते हो स्ट्राइकर को, कि उसके बाद वो रीड करने के लिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और उसके बाद एंड में फिर आपको एक साइड में पुश करना है उसको जितना भी हो सकता है कि यहाँ मैं चाहता हूँ वहां पे वो आए. Okay, and I'll take one last one, which is Paji, your best place to visit in Mumbai other than Mumbai Football Arena? बेंड्रा में एक रेस्टोरेंट है बुटीको करके, तो वो मेरा बेस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट है. So guys, you know exactly where to go to find Amrinder after Mumbai have won their next match at the Mumbai Football Arena. Okay, thank you very much, Amrinder, for that piece of information. Right, okay, that was a good round, Amrinder. Well done. As quick as that could be. चलिए अब बात करते हैं आपके all time ISL 11 की, and I gave you a heads up about this, so I'm sure you have something prepared. You've played one season, which was 2015 with ATK, and since then you've been with Mumbai City FC. So I give you the freedom. You want to choose players you've played with or against? Yeah, you want to choose anybody? Like all time. You decide. All time ISL 11. It's not like that. In goal, 5 फॉरेनर जहाँ कुछ भी जो मुझे अच्छा लग रहा है ठीक है, कोई बंदिश है ही नहीं. यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. मैं अगर मैं देखूं कि ऑल टाइम में मेरे लिए गोलकीपर रहेगा एडल बेटे, जो चेन्नई एटीके के लिए, पुणे के लिए भी आई थिंक. या पुणे एज वेल, थर्ड सीजन 2016. So Edel Bete in goal. Okay, let me write this down so I know exactly what you said also. Edel. राइट बैक में मेंडी, चेन्नई एफसी, चेन्नई सिटी एफसी. बर्नार्ड मेंडी. ओके, यस. राइट बैक संदेश जिंगन, डिफेंडर. Sandesh Jingan has been mentioned more often than Mumbai City FC today, by the way. And other defender, Serino from Chennai City FC only last season, I think, last to last. I really of course, like captain him. In their, yeah. He's very good. And so, left back is Subhashish. Subhashish, your teammate? Yes. Subhashish left back. Okay, midfield में कौन है? दो मिडफील्ड में मैं रखना चाहूंगा बोरखा फ्रॉम एटीके. बोरा, इयन ह्यूम ने भी मोरा को चूज किया था, इयन ह्यूम ने अपनी ऑल टाइम 11 में कैप्टन बनाया था बोरा फर्नांडिस को. ठीक है, तो मैं उसको चूज करना चाहता हूँ. मैं उसके साथ खेला हूँ, उसका वो एक बहुत ही अच्छा परफेक्ट लीडर है मुझे लगता है. और उसके साथ याहू को फ्रॉम गोवा. ओ या, अहमद याहू. ओके. And then next three is like. So you're playing a 4-2-3-1. 4-2-3-1. Okay. So who's Maluda. on the left side? Yeah. Okay. Maluda. On the right. Okay. On the right, Maluda. And on the left is Sunil Chhetri. Okay. Chhetri. And through the middle, Diego Forlan. Right. Yeah. Diego Forlan. And I can go with striker is, I think he's one of the best. Koro only. I can go with Koro. Fantastic. Let me just see. So you've chosen Edel Bete in goal. Yes. Bernard Mendy as your right back. Subhashish Bose as your left back. Jingan and Sereno, your two centre backs. Bora Fernandes is in the midfield along with Ahmed Jahu. And you've got Maluda on the right. You've got Chhetri on the left. Through the middle, you're playing Forlan, who's playing just off Koro, who's leading the line. Correct? Yes, buddy. So I can see that you've picked 3 Indians, which is Jingan, Subhashish, and Chhetri Subha. Who's your captain? Of course, Diego Forlan. Captain? Sorry? Forlan. Diego. Okay. Forlan. Yeah, I still remember his hat trick for Mumbai City FC. I think it was against Kerala. Sandesh remember, I think. Sandesh will remember. Nice one. That's the way to give it back to Sandesh Jingan. You just remind him of that scoreline on that day. I'm sure Kerala fans are not happy,
But that was a special hat trick from Diego Forlan. That was a good team as well. Watching Forlan play with the likes of Chetri over there. चलिए अगर ऑल टाइम इंडिया 11 है तो एक वो भी दे दीजिए as we come towards the end of this discussion. इंडियन 11 में गोलकीपर में अमरिंदर सिंह. Alright, सुना वो लग रहा है नाम. अमरिंदर सिंह शायद. और राइट बैक प्रीतम कोटाल. Okay, Preetham, you played with him in season 2, which is season 2015 ATK. And Preetham Kotal, Sandesh Jingan, and Anas in defender. Jingan and Anas. Okay, Anas. Yeah. जब मैं पुणे में था मुझे लग रहा है मैं अनस के साथ था तो उसका बिहेवियर इतना अच्छा है. Amazing. He is one of the best. He was your captain? He was your captain at Pune, I think? Or no, you were his captain? In Pune? Yeah. No, Venki Bhai, I think, captain when I start. Venki was the captain. Okay, yeah. Venki Bhai, so many good players have come out of Pune. बीच में अनस भाई भी कैप्टन थे तो लाइक वहाँ पे एक रोटेट होता रहता था. अनस था, वेंकी था, अराटा था. Arata Izumi, yes. तो लेफ्ट बैक सुभाशिष. Left back Subhashish again. Okay. Midfield again. You're playing 4-2-3-1. Yes, buddy. Okay. Midfield so all time India 11. Midfield में Borges. The tank. Borges. The smiling tank. And Thapa. Okay. Then machine. Thapa. Oh his yeah. Machine. So the tank and the machine together. That's interesting. Nice names. And still very young, both of them. And on the right, Brandon Fernandez. What a player. Brandon, okay. And left side, Sunil Chhetri again. Suna sa naam hai. Sunil Chhetri. And Sahal. Sahal through the middle. So you're playing Sahal at 10, essentially. Number 10. I really like him. He's very good with feet. And हमेशा confidence में रहता है. मुझे लग रहा है कि जब वो फील्ड पे स्माइल के साथ मोस्टली प्लेयर्स जो टीम में आए हैं थापा भी हमेशा स्माइल करता है. बोर्जेस, साहल एंड स्ट्राइकर जेजे. Strikers JJ, the Mizo sniper. जी भाई. This is a very good team, by the way. I mean, I would have probably picked the same team. Not like my opinion counts, but this is as good as a team that can be. It's young. It's got a lot of legs, and it has you in goal. So I'm glad Gurpreet Singh Sandhu is out of this chat in good time. And it has Sunil Chhetri and JJ, two players I love to see together, on a football pitch because JJ की जब से injury आई है, तब से we've not been able to see the both of them together. And Sahal at number 10, I'm sure makes Kerala fans very happy. And even Sunil Chhetri has been saying has been talking a lot about his potential. So that is a very good team, sir. So Amrinder in goal, fullbacks are Preetham Kotal and Subhashish. Your centre backs are your very, very close and dear friend Sandesh Jingan and Anas Edathodika, a man you love. Borges the machine and Borges the tank and Thapa the machine are in the middle. Thapa's the machine. Brandon Fernandez from Goa on the right, Sunil Chhetri on the left, Sahal at 10, and JJ Lal Peklu are leading the line for you and hopefully supplying the goals as well. What a team. Very good player. JJ always stay in the box and suddenly he came from somewhere and scored. Yeah, it's, I mean, amazing. Absolutely. Okay, we're coming to the... मोस्टली जो स्कोर उसके बॉक्स के अंदर से हमेशा जस्ट शांत रहता है, बॉक्स में अपना काम करके निकल जाता है. That's true. That is who's the captain in this? If you don't pick Chhetri as the captain, who would you pick as the captain? Sandesh Jingan. So Jingan the captain. Okay. And you said Forlan is the captain of your all-time ISL 11, Diego Forlan. Okay, fabulous. And who would you pick as the coach of your all-time ISL 11? The foreigner one. मुझे लग रहा है हवास सर ने भी मैं हवास सर के अंडर खेला हूँ. बहुत ही अच्छे उनका प्लान है जो बहुत अच्छा है. और जॉर्ज कोस्टा के साथ मैं खेला हूँ. उनका भी लाइक रीडिंग सेंस इतना अच्छा है और इतना लाइक एकदम अपने काम में रहते हैं. और एफसी गोवा का कोच है वो भी लाइक वेरा सर भी बहुत अच्छे से एकदम काम रहते हैं. मैं फॉर मी आई थिंक Lubera sir.
Sergio Lobera? Okay, I just saw somebody giving him a lot of blue hearts. Sergio Lobera, your coach of the all-time ISL 11. Goa have made the semi-finals or more every time he was in charge. So that's not a bad effort at all. Let's see where he goes next. Actually, a lot of people have that question. Sergio Lobera kahan ja rahe hain next? We don't know, so we can't say anything. All-time India 11 ke coach kaun honge? If you were to pick an Indian coach, this is a tough one. Humi had picked Vaduvai. I think Derek sir. Derek Pereira, yeah, of course. I can pick them now. Yeah, you can. You can pick anyone. Of course, Derek sir. This is because of your time with him at Pune, right? Yes. With the Red Lizard. And Or is it? I really like जब मैं पुणे में था तो हमेशा एक यंग प्लेयर को भी मोटिवेट करते थे और कुछ भी होने से उनको लाइक हमेशा ही वो कॉन्फिडेंस देते हैं प्लेयर्स को. तो आई थिंक मुझे लग रहा है वहां से ही मैंने इतना कॉन्फिडेंस लिया है उनसे. मैंने बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लिया है तो मैं इसलिए उनको इंडियन कोच रखना चाहता हूँ. You could have also picked Sukhwinder Singh, the legendary coach of Punjab, who led JCT to the title in the first ever NFL, if I remember correctly. Which actually brings me to the next point and the last point in this discussion, Paji, which is Punjab has been such a conveyor belt of talent. You talk of Jarnail Singh, you talk of Inder Singh. आप बात करें Harjinder Singh, who was possibly rated as one of the best midfielders of all time. Even coming up to people like you, Balwant Singh, Jarmanpreet Singh, some of the younger crop that's coming through. What is the reason that Punjab has such a conveyor belt of talent? इतने सारे लोग, इतनी सारे talent वहां से निकल के आते हैं. And can we see an ISL team from Punjab anytime soon? ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं कि मैं चाहता हूं पर्सनली कि एक आईएसएल का टीम और एक आईएसएल आई लीग कोई भी टीम एक प्रोफेशनल टीम पंजाब में होना चाहिए. क्योंकि जो पंजाब में टैलेंट है मैं देखता हूं मुझे लग रहा है बहुत ही एक अच्छा टैलेंट है और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे. आपने देखा होगा जेसीटी जब थी मुझे लग रहा है 8 साल होगा जेसीटी को बंद हुए और उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट रहा है पंजाब के प्लेयर्स के लिए कि पंजाब से जाके बाहर खेलना. और जेसीटी जब थी मुझे लग रहा है हर टीम में 3-4 पंजाबी थे और नॉर्मली जो जेसीटी में होते थे वो मोस्टली पंजाबी प्लेयर्स होते थे. वो एक हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म था कि हमारे पास एक था कि हम लोग जेसीटी जा सकते हैं. अभी जेसीटी बंद होने की वजह से प्रोफेशनल क्लब नहीं है पंजाब में. तो एक मैं बोल सकता हूँ कि एक डिसएडवांटेज है प्लेयर्स के लिए जो पंजाब के प्लेयर्स हैं. तो मुझे लग रहा है कि हमें एक पंजाब में टीम चाहिए अगर हम पंजाब के फुटबॉल को ऊपर लेके आना चाहते हैं. अगर पंजाब में टीम होगा तो बहुत सारे प्लेयर्स मैं देखता हूँ जब भी मैं देखता हूँ पंजाब पुलिस है पंजाब में जो जॉब कर रहे हैं, पंजाब पुलिस है और भी बीएसएफ है, सारी टीम्स है. इतने इतना ज्यादा टैलेंट है और जब भी आप उनकी गेम्स देखोगे तो आपको कुछ चेहरे ऐसे दिखेंगे कि हाँ ये इजीली खेल सकते हैं आईएसएल में, आई लीग में जाके इजीली खेल सकते हैं. वो मुझे लग रहा है इसीलिए पंजाब पुलिस जहाँ इधर यहाँ पे जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है कि अपने आप को कहीं बाहर, क्योंकि ये इजी नहीं है कि पंजाब से जाके वहां पे कहीं सेट होना, डायरेक्ट सेट होना वहां पे, तो वो इजी नहीं है. तो मुझे लग रहा है कि एक पंजाब में अगर प्रोफेशनल टीम हो तो और पंजाब के फुटबॉल के लिए बहुत ही एक अच्छा रहेगा. Listen, who doesn't like Punjabis in a dressing room? I mean, right from Khabda Paji bringing his big speakers into a dressing room, or Gurpreet doing that, or even you carry speakers onto the team bus. Is that the reason why you want more Punjabis as well? Because the mood is always lively when you have more Punjabis in a dressing room. मैं समझा नहीं पाजी, कैन यू रिपीट प्लीज? मैं कह रहा हूँ the mood is always very lively. जब पंजाबीज ड्रेसिंग रूम में होते हैं तो एक मूड अलग ही सेट होता है मैच से पहले. जी पाजी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं सब लोग, सबके साथ पंजाबी फ्रेंडली होते हैं. तो एक ये भी रीजन है और दूसरा रीजन कि पंजाब की टीम आने के लिए सब और भी ज्यादा प्लेयर्स निकल के आएंगे जो जिनको कुछ सामने क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ जाना है. तो एक रीजन ये भी है. ऑफ कोर्स पंजाबी हमेशा ही लाइक चिल माहौल में रहते हैं, ड्रेसिंग रूम में हो तो अपना जस्ट बी फ्री, तो सबके साथ एंजॉय एंड कैसे जो भी करना है.
Absolutely, and sometimes they go to a barber instead of going to a school. कभी-कभी गलती से वो barber के पास चले जाते हैं school जाने के अलावा, which is why we absolutely love Amrinder Singh. We love Sandesh Jhingan, we love Gurpreet Singh Sandhu, and I'm sure Mumbai City FC and their fans have enjoyed this. It's been great fun, Amrinder. Thank you so much for being a part of Let's Football Live. I had a lot of questions that came from fans. I tried to take as many as possible. But we wish you all the best for the next season of ISL and, you know, your time with the national team as well. Keep pushing some of the best goalkeepers in the country, and I'm sure your time will come as well. Until then, it's been a lot of fun. Any message finally to all the fans before you say goodbye? थैंक यू पाजी, एंड मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज अभी जो सिचुएशन चल रहा है उसको समझिए और जितना भी ज्यादा हो सके अपने आप को सेफ घर पे रखने के लिए ही सबकी भलाई है, और जितना भी ज्यादा हो सके घर पे रहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और जो भी आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हो वो कीजिए। प्लीज अपने घर पे रहिए, क्योंकि हमें ये सिचुएशन से सबसे जल्दी निकलने का चांस यही है कि हम लोग जितना ज्यादा घर पे रहें। Perfect, Amrinder. Thank you so much, and really enjoyed this. I'll speak to you soon. All the best, bye. Thank you, and Baji. Stay safe in Punjab. Thank you, Baji. You too, Baji. See you, Baji. Right, that was Amrinder Singh all the way from Punjab. Had a lot of fun. Sorry, I couldn't get a word about Kerala Blasters from him, but he did produce one of the saves of the season in Kochi. Thank you for all your questions. Some of those of you who sent it early doors. We tried to get as many in as possible, but continue joining us as well. We'll have a very special guest joining us in a couple of days' time. But until then, from the Let's Football Live team who've been bringing this to you regularly during the lockdown period, it's not just goodbye, but also stay safe and stay at home and continue to wait for updates from us. Bye-bye.